भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तेरा काल है। अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने पे जितना धार लगे उतना ही खूब प्रखरता है। हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो काल होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, in this video you will get fantastic concept on permutations and combinations, so that is permutations of alike objects. आपका ड्यूटी बनता है क्लियर ये वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड अच्छा से वॉच करो, फिर समझने का कोशिश करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, रिमेंबर इट। Now we will discuss about permutations of alike objects. Clear? Alike object का मतलब क्या है ना, कुछ एलिमेंट सेम है. So that means क्या, the number of permutations of indifferent things taken all at a time when P are of alike of first kind, Q are of alike of second kind, and R alike of third kind, and the rest are different is n factorial by P factorial into Q factorial into R factorial. Now suppose if you consider total number of things, so that is n. Clear? Number of things is n. Suppose from here to here, P are of alike of first kind. So this is what? And so this is Q are of alike of second kind. And R are alike of third kind. And rest are different. इसका क्या मतलब है? So this is what? इसका मतलब है, so this is P. And इसका मतलब है, so this is Q. ठीक है? And so this is इसका मतलब है R. So this is, and rest are different. ठीक है? Suppose if you consider clear जो number of permutations, if you consider let the number of permutations, ठीक है, so that is equal to x है. ठीक है? अभी number of things is P, taken P all at a time, so their different arrangement is P factorial. Similarly, so this is Q factorial. Similarly, so this is R factorial. And so here हमने consider किया number of permutations, so that is x. So like this from fundamental principle of counting. And rest are different, एक बार करके है. So this is into, so you can say 1, and so this is 1. So that is number of things is n, taken n at a time, their permutations is n factorial. So obviously you can say, so x equal to is what? So this is n factorial, so this is by P factorial into Q factorial into R factorial. ये आपको समझना है. ठीक है? Now find the number of permutation of the words, so like this. ठीक है? तो इसका permutations क्या होगा? पहले कितना अल्फाबेट है उसे काउंट करो. 3 factorial, I दो बार है, so this is 2 factorial, 6 by 2, so that is equal to 3 है. EIEEE पहले कितना है? So this is 5 factorial, E 3 बार रिपीटेड है, 3 factorial, 120 by 6, so that is 20 है. ठीक है? ये कितना है देखो, 4 factorial by 2 factorial, 4 factorial 24 by 2, so this is 12. I jar, so this is 5 factorial, I दो बार रिपीटेड है, 2 factorial, so this is 120 by 2 equal to 60 है. ठीक है? JE 3 factorial, so this is by 2 factorial, 6 by 2, so that is equal to 3 है. नाइजर में क्या है देखो, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, so this is 5 factorial, so this is 120. वेस्ट बंगाल JE 5 factorial by E दो बार रिपीटेड है, 2 factorial, 120 by 2, so that is 60 है. IIT JE कितना है टोटल? 6. ठीक है? I दो बार रिपीटेड है and E दो बार रिपीटेड है. 6 factorial means 720 and 2 into 2 4, so that is what? 180. MST CT. ठीक है? यहीं पे क्या है देखो, 6 factorial, T दो बार रिपीटेड है, 720 by 2, so that is 360. कॉमेट, इस पे कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है, so this is 6 factorial, so that is what? 720. यही आपको समझना है. क्लियर? इसी टाइप का क्वेश्चन से जनरली एग्जाम में पूछा जाता है. आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. Now find the number of permutations of the letters of the word mathematics. ठीक है? जब ऐसा होगा, so that means क्या, the number of permutations equal to, what you write, the number of permutations, so that is equal to is what? Mathematics. पहले कितना अल्फाबेट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल. ठीक है? एंड उसका बाद क्या है देखो, यहीं पे m दो बार है, so this is 2 factorial.
ए 2 बार है, ये भी 2 फैक्टोरियल। यहीं पे देखो टी कितना बार है, ये भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसका बाद कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है। ऐसा ही इसका आंसर लिखना, जब बड़ा बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको ब्रेक नहीं करना। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब ऐसा होगा सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए क्या करना है ना, पहले काउंट करो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। यहीं पे देखो कितना अल्फाबेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो दैट इज 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी सी ओ कितना बार है देखो, सो दिस इज ओ 2 टाइम्स है। ठीक है, यहीं पे एन कितना टाइम्स है देखो, एन भी 2 टाइम्स है। ठीक है, उसका बाद देखो यहीं पे टी कितना टाइम्स है ना, टी 3 टाइम्स है। ठीक है, एस एक बार है, आई कितना बार है देखो, सो दिस इज आई 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये बस ऐसा ही लिख देना, इसको ब्रेक नहीं करना। ठीक है, जब बड़ा बड़ा फैक्टोरियल गिवन होगा तो आप ऐसा ही लिखोगे। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 5 4 3 5 3 है। ठीक है, सो दैट मीन्स हाउ मेनी द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ऐसा करके लिखना, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, कितना है, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 कितना बार है, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल। 3 कितना बार है, ये भी 2 फैक्टोरियल। ये तो छोटा है, इसको ब्रेक कर सकते हो, सो दिस इज 120। ठीक है, एंड सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 into 2, सो दिस इज 4, 120 by 4, सो दैट इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, जब छोटा नंबर होगा यू कैन ब्रेक, अदरवाइज नॉट। Now, how many 7-digit numbers can be made by the digits 1 2 3 4 3 2 1, so that odd digit always occupy the odd places. ठीक है, so that means क्या, आप क्या करोगे, so like this, ऐसा करके लिखो, here odd digit always occupy the odd places. ठीक है, suppose क्या है देखो, this is 1, this is 2, this is 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर, सो यहीं पे क्या है देखो, ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, यहीं पे 1 है, यहीं पे 3 है, यहीं पे 3 है, एंड सो दिस इज 1। ठीक है, क्लियर, जब ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस है तो इवन डिजिट इवन प्लेसेस में होगा। सपोज यहीं पे इवन डिजिट में क्या है, सो दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज, ठीक है, 2 है। द नंबर ऑफ वेज बाय नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स इक्वल टू इज व्हाट, टोटल अल्फा कितना है देखो, नंबर कितना है, 7 फैक्टोरियल, एंड सो दिस इज व्हाट। ठीक है, और सॉरी टोटल नंबर्स इज नॉट हियर, सो यहीं पे और इसके बारे में और डिजिट, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 2 बार है, 1 2 बार है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, सो दिस इज 2 4 2, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, 2 into 2 दिस इज 4, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, सो दिस इज 2 है। ठीक है, सो 4 into 2 8, and into, so that is what, so this is 3, so that means is what, number of 7 digit numbers, so that is 18 है। ये आपको समझना है, nothing else. Now find the number of ways in which 10 students can be arranged in a row. ठीक है, 10 students can be arranged in a row such that A is always ahead of B. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, ए हमेशा बी से पहले आएगा। सो सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस, मैंने एक एग्जांपल समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज ए बी सी, इसका डिफरेंट परम्यूटेशंस क्या होगा जिसमें ए इज ऑलवेज अहेड ऑफ बी। ठीक है, कितना केसेस होगा देखो, सो दिस इज ए बी सी, ए सी बी, ठीक है, बी बी ए सी, ठीक है, एंड सो दिस इज बी सी ए, नेक्स्ट क्या, सी ए बी एंड सी बी ए। ठीक है, A is always ahead of B, देखो A is always ahead of B, A is always ahead of B, A is always ahead of B। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, इसका परम्यूटेशंस क्या था, ए बी सी का परम्यूटेशंस क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आधा केसेस में A is always ahead of B। सपोज इसका परम्यूटेशंस जब ऐसा होगा, इस लॉजिक का साथ होगा, तो आपको क्या लिखना होगा ना, हाफ इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यार देखिए यहीं पे बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, तो यार such that A is always ahead of B, so number of ways, the number of ways it can be done, so that is equal to is what, so this is half into 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल बहुत बड़ा सा नंबर होगा तो उसको ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं है, इंटू हाफ है। हाफ क्यों है, देखो जैसा ये आधा केसेस के लिए हुआ है, इन एवरी केसेस के लिए ऐसा ही आधा होगा जिसपे A is always ahead of B, nothing else. Now find the number of ways in which 4 particular persons A, B, C and D and 6 more persons can stand in a queue, so that A is always stand before B, तो यार B before C and C before D है।
क्लियर, सी बिफोर डी। सो दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या है, देखो जब एबीसी का परम्यूटेशन हमने फाइंड किया 6 था, ठीक है। ए इज ऑलवेज एड ऑफ बी का कितना आधा केसेस में था, तो उसका परम्यूटेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, हाफ इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम वे, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन, ऐसा करके लिखोगे, द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, ए बिफोर सी, ए बिफोर सी नहीं, ए बिफोर बी बिफोर सी एंड सी बिफोर डी, ठीक है। 3 केसेस है, ठीक है। सो देयर आर 3 केसेस है। सो दैट मीन्स क्या है, देखो ए ऑलवेज स्टैंड बिफोर बी बिफोर सी एंड सी बिफोर डी। सो दैट मीन्स क्या, इसके लिए एक हाफ होगा, इसके लिए भी एक हाफ होगा, इसके लिए भी एक हाफ होगा। सो दैट मीन्स क्या, टोटल पर्सन कितने हैं, 4 + 6, सो दैट इज 10 फैक्टोरियल बाय हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज 10 फैक्टोरियल बाय 8, ठीक है। ऐसा ही आप छोड़ देना, ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। जब 5 फैक्टोरियल ज़्यादा से ज़्यादा 6 फैक्टोरियल तक होगा तो लिखना, अदरवाइज ऐसा ही छोड़ देना। Now find the number of permutations of the letters A, B, C, D such that B does not follow A, C does not follow B and D does not follow C है, ठीक है। तो उस टाइम इसका परम्यूटेशंस क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब B does not follow A, तो AB नहीं होगा, C does not follow B means BC नहीं होगा, D does not follow C, so that is CD नहीं होगा, not allowed। AB, BC and CD clear, not allowed है, ठीक है। जैसा एक क्वाड्रेपल का बारे में सोचो, ABCD में AB इज नॉट ट्रू, क्लियर, A नहीं होगा, BC नहीं होगा, CD नहीं होगा, ठीक है। जैसे ABDC, ठीक है, तो इसको फिक्स करके इसको चेंज कर दे, ABDC में, ठीक है, AB नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो BCAD, तो यहीं पे तो BC नॉट अलाउड, सो दिस इज AB नहीं होगा। सो दैट मीन्स क्या, तो यहीं पे जो नहीं होगा वो छोड़कर देखो हम लोगों ने ऐसा अरेंज किया, ACBD, दिस इज वैलिड, ठीक है। तो ये ऐसा ही लिखा ACBD, ठीक है। तो ACDB, ठीक है, देखो क्लियर, सो दिस इज ACDB, सो दैट मीन्स यहीं पे, सो हियर इसको उल्टा कर दो, ADCB, ठीक है, ये अलाउड है। नेक्स्ट ये क्या है, ACBD, देखो ACBD में, ठीक है, AB है, ADCB, ऐसा करके मैंने क्लियर अरेंज करके, जब भी तुम्हें क्वाड्रेपल का बारे में सोचोगे तुम्हें इसको फॉलो करना है, AB BC CD, ए पर नहीं होगा, A का बाद B, ठीक है, BC, ठीक है, B का बाद C एंड C का बाद D, ऐसा नहीं होगा, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करके मैंने अरेंज किया, सो हेंस द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, सो दैट इज इक्वल टू 11 है। अभी कैसे सोचते हैं, देखो ना, तुम्हें ऐसा है क्वाड्रेपल ABCD सोचो, ठीक है, ABCD में AB नहीं होगा, CD भी नहीं होगा, ठीक है, और फिर क्या बीच में BC आ रहा है तो BC भी नहीं होगा। फिर मैंने AB को फिक्स किया, इसको चेंज कर दिया, ABDC, तो ये तो होगा लेकिन AB नहीं होगा, ठीक है। सो फिर क्या है, देखो, सो दिस इज BCAD, BC भी तो नॉट अलाउड है, तो यहीं से ऐसा करके अरेंज कर लिया जो ये क्लियर यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ACBD, ठीक है, क्लियर, ये अलाउड हो रहा है, तो इसीलिए ACBD ऐसा करके, ठीक है। सो मैंने जो लिखा, सो दैट इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन, सो दैट इज 11 है, ठीक है। इसे समझने का कोशिश करो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है।